Anjali Bhatt-Manda is a gold medalist in BSc Chemistry from Sambalpur University and earned her postgraduate degree in Business Management from the Xavier Institute of Management, Bhubaneswar. She works as a consultant and trainer with Atal Incubation Center of Niti Aayog. Anjali's hobbies are poetry writing, organic gardening, and traveling. She is currently working on her second book, Those Remarkable Women. Her poem today is a memoir of her childhood times in Kansbahal. Over to Anjali. Hello Kansbahalites. I have composed a new poem in the memory of Kansbahal days. We all have beautiful childhood memories of food, flavors, festivals, our parents and our childhood home. Kansbahal has been the place where I spent beautiful days in my childhood, and we all have strong association with Kansbahal. So here goes my poem. It's titled, What I Unlearned in Life's School. A journey into the time machine inside my school's red brick building, unfaded through the corridors of time. I gazed into the recess break where we broke free, played boisterously carefree. We chased, fought, forgave and laughed, and all my worries stood still. Then the corridor led straight to the principal's office. Always dressed in pristine white, formidable she sat, behind an array of medals and shields, behind the Golden Cross and the Mahatma. But when she smiled and gave me a pat, all my fears stood still. I scampered into the play area, plaited hair in pendulum, seesaw, swings and a slide, a wobbly merry-go-round. But I chose the monkey ladder, where 8 friends turned acrobats. We fell, got up and swung again, and all my inhibitions stood still. The belching yellow bus, bellowing a horn, took us to picnics by the riverside. We cut, cleaned, cooked, scrumptious meals and ate ravenously. We cycled to school every day. In all our anxieties, with our aspirations, we grew up, sans the net and the smartphones, and all my happiness e-mantras have stood still. Thank you. नमस्कार, श्रावणी हालदर आपके समक्ष एक कविता लिए। जिंदगी 2 पल की जिंदगानी, आज बचपन कल जवानी, परसों बुढ़ापा फिर खत्म हुई कहानी। चलो हंसकर जीते हैं, चलो खुलकर जीते हैं, फिर ना आएगा ये दिन सुहाना, फिर ना आएगी ये रात सुहानी। जो पल बीत गया उसे जाने दो, क्यों करे उस आने वाले कल की फिक्र। अब और आज जियो, दूसरा पल हो ना हो। आओ जिंदगी को गाते चले, कुछ बातें मन की कहते चले, रूठने वाले को मनाते चले। जिंदगी की कहानी को प्यार से लिखते चले, कुछ बोल मीठे कहते चले, कुछ रिश्ते नए बनाते चले, पुराने रिश्तों को संजोते चले। क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे, चलो कुछ लुटाते चले, सबके साथ चलते चले। जिंदगी का सफर यूं ही काटते चले, जिंदगी का सफर यूं ही बिताते चले। नमस्कार। कविता रिश्ता। हर सफर के कुछ कहानियां होते हैं। चलिए इस सफर में भी कुछ कहानियां बोलते हैं, आपके और हमारे बीच
वैसे हमारे और आपके बीच क्या ताल्लुक है? है ना कुछ ताल्लुक, एक बहुत बड़ा सा, गहरा सा, मीठा सा ताल्लुक है। ना हम में आस है, ना हम पास है, फिर भी आस पास है। ना हम में दूरियां हैं, न नजदीकियां, फिर भी हम एक दूसरे के लिए खींचे चले जाते हैं। न हमें कुछ लेना, न कुछ देना, फिर भी एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करने के लिए हाजिर हैं। न जान न पहचान, फिर भी सब एक दूसरे के हैं मेहमान। कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ दोस्ती के, कुछ रिश्ते बेनाम होते हैं, फिर भी वे जिंदगी भर रिश्ते निभाते हैं। देखा ना, बुन गए ना गहरे ताल्लुक आपके और हमारे बीच। रिश्ते प्यार से, दिल की गहराइयों से निभाओ, ना कि मतलब से, साजिश से, ना कि शिकायत से। हर कदम साथ देने वाले बेनाम रिश्ते मिल ही जाएंगे। बस रिश्ता निभा के तो देखो। नमस्कार। तो दोस्तों, चाय पे गुफ्तगू तो बहुत हो चुकी। आज कुछ गुफ्तगू जाम पे भी हो जाए। चीयर्स। सबसे पहले मैं बलजीत और उसकी टीम को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां सारे कांसबाल वासी एकत्रित हो सके। तो चीयर्स बलजीत, ग्रेट जॉब डन। ठोको ताली। कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन जिस चीज ने मुझे जीवन में बहुत कुछ दिया है वो है मेरा स्पोर्ट्स एंड गेम्स एक्टिविटी। कांसबाल में अगर मैंने नाम कमाया है तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स के एक्टिविटी। चेन्नई में अगर ईसीसी चेन्नई में अगर मैंने नाम कमाया तो भी स्पोर्ट्स एंड गेम्स के चलते। यहां तक कि चाइना में भारतीयों के बीच में अगर मैं अपनी जगह बना पाया हूं तो वो भी मेरे स्पोर्ट्स एंड गेम्स के चलते। बचपन से ही मैं गेम्स और स्पोर्ट्स के पीछे पागल रहा। मैं अपने बचपन जब हीराकुद में था, स्कूल से लौटते ही 4 साढ़े 4 बजे तक मैं फुटबॉल खेलने निकल जाता था। फुटबॉल खेलकर 6 साढ़े 6 बजे तक कीचड़ में लथपथ घर लौटता। दरवाजा खोलते ही मेरे पिताजी से आंखें 4 होती, जो एक आराम चेयर में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते। चुपचाप अंदर जाकर नहा लेता। नहाकर टेनिस के लिए तैयार हो जाता और पीछे के रास्ते से भागकर क्लब चला जाता टेनिस और बैडमिंटन खेलने, और लौटता 10 साढ़े 10 बजे तक। और तब तक बेचारे पिताजी सो गए होते हैं। बच गया संभाल। ठोको ताली। आज के दौर में मेरे इम्यूनिटी का शायद सबसे बड़ा एक कारण है कि हम जब फुटबॉल खेलते थे, खेलने के बाद हम पास के एक होटल में अंडा और चाय खाने जाते। और अंडा चाय खाने के पहले वहीं अंदर रखा हुआ कुछ खाली ड्रम पे, तेल के ड्रमों में पानी भरा रखा जाता था, और उस ड्रम को एक मैले कपड़े से ढका हुआ था, और वो कपड़ा आधा से ज्यादा पानी में डूबा हुआ होता। सामने एक एल्यूमिनियम का मग रखा होता। उस एल्यूमिनियम के मग से निकालकर पानी हम घटाघट पी जाते थे। आज के दिन में ये कोई सोच भी नहीं सकता
कि ऐसे ऐसे जगह में ऐसे ऐसे माहौल में लोग पानी पी सकते हैं। शायद ये एक इम्यूनिटी का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। खैर, आज भी मेरे खेल कूद के प्रति पैशन इतना ज्यादा है कि at 69 I still continue to play tennis and badminton, and that too good tennis and badminton. I think मैं अपने जीवन का सबसे बेहतरीन टेनिस इन दिनों खेल रहा हूं, और शायद इसीलिए the young players love to play with me and they don't say बुढ़ा आ गया बोर करेगा ठोको ताली। Well, my extracurricular activities have given me a lot of things in life. Good friends, good health. But today, games and sports is no more an extracurricular activity. It is a profession. The younger generation can take up games and sports as a profession and have a good living. So wishing them all the very best to all my young people, all my young friends. Cheers.